Students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kin classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to discuss the new chapter, and that is trigonometry. Students, this chapter is, students used to think that it is very fearful chapter, but genuinely the chapter is very interesting. तो सबसे पहले बात करेंगे कि what is a trigonometry, what is the use of trigonometry in a real life, and what is the use of this chapter in class 10th. So students, फटाफट बात करते हैं पहले trigonometry के बारे में. तो students, मैं यहाँ पर आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री को तोड़ूं तो ट्रिगोनो प्लस किससे मिलकर बना है? मैट्री. देखो ट्रिगनो का मतलब होता है बेटा, ट्रिगनो का मतलब होता है ट्रायंगल, और मैट्री का मतलब होता है बेटा मेजर. सो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल मेजर यानी कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री टीच यू टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रायंगल की जो पर्टिकुलर टर्म्स होती है उनको मेजर करना सिखाता है. सो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल में कौन कौन सी टर्म्स होती है उनको देखते हैं. लेट सपोज दैट आई हैव टेकन अ रैंडम ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, ठीक है. सपोज दैट आई हैव टेकन दिस ट्रायंगल and in this triangle I have mentioned the name of the vertex A, B and C. So here you are able to see that there is a side whose measurement is, let's say, A, and there is another side BC whose measurement is B unit, and the AC is another side whose measurement is C unit. Got it? So कुल मिलाकर there are three sides और name them. अगर इनको नाम देंगे तो AB, BC and CA. Another three terms also exist here, and that is angles. So here you can easily find out this is the angle A, this is the angle B and this is the angle C. So students, I have mentioned here angle A, angle B and angle C. So student, actually in a triangle there are 6 terms in which 3 are the sides, these are the sides, all 3 sides, and these are the 3 angles. Got it? So we have basically 6 terms, 3 are the sides and 3 are the angles. So students, actually what we are going to do in this chapter, students, we will get some of them and we will try to find out rest of the terms. It's mean some of the terms means sometimes we have a one side and a one angle, so we need to find out the rest of the sides and rest of the angles. Got it, students? Before starting the chapter, I am going to tell you that this chapter is based on a particular triangle, specific triangle, and that is right angle triangle. So students, तो इस चैप्टर को हम डिटेल में सीखेंगे अब, ठीक है. तो दिस इज बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल, एंड यू नो वेरी वेल दिस इज 90 डिग्री, ठीक है. दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल in which one angle is given exactly 90 degree is known as right angle triangle. We also called him right triangle. Got it? So in the right angle triangle we are going to find out based on particularly theta. The rest of the values we are going to find out based on the theta. ठीक है, यानी कि थीटा पर बेस्ड हम रेस्ट ऑफ द साइड्स को फाइंड आउट करने वाले हैं. तो व्हाट इज थीटा? थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा एक्चुअली थीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ ए 2 सेगमेंट्स. ठीक है, 2 सेगमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, मेजरमेंट है, उसको हम थीटा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है. तो इट्स अ, लेट वी हैव टेकन अ एंगल, ये सिर्फ एक एंगल है,
गॉट इट। चलिए स्टूडेंट्स, so we have given here name A, B and C. So in the previous class you have studied about the Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या सिखाती है कि 90 डिग्री जो होता है ट्राइंगल, उसकी जो अपोजिट साइड यानी उसके ठीक सामने वाली साइड जो होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस, यानी कि हाइपो, शॉर्ट में हाइपो बोल दिया जाता है। तो हियर हाइपो क्या है, यहाँ पर हाइपो इज एक्चुअली AC, got it? Clear? For this थीटा, ध्यान से सुनिए, for this थीटा, अगर इस थीटा के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस थीटा की अपोजिट साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी कि इसको बोला जाता है हाइट या परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर कितना गिवन है बेटा, या जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, गॉट इट, या फिर उसको हम समटाइम्स वी कॉल इट एल्टीट्यूड, इसको हम एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, एल्टीट्यूड। यहाँ पर क्या होगा, इस थीटा के लिए BC होगा, गॉट इट स्टूडेंट। तो ये है आपके सामने BC, ठीक है, तो BC है बेटा आपके सामने थीटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द टर्म। तो ये आपकी जो आपकी टर्म बच गई है बेटा, ये कहलाएगी बेस, गॉट इट। तो ये हो गया आपके सामने बेस, ठीक है, और इस बेस, ये होता है आपका बेस, तो गॉट इट। तो इन दिस बेस विल बी, या बेस जो होगी आपके पास वो कितनी होगी बेटा, AB। बेस कितनी होगी बेटा, AB। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा बेहतर तरीके से कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हम लोगों को 3 साइड्स दी जाती है, एक पर्टिकुलर जिनको नाम दिया जाता है, वो है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हाइपो होती है, या किस सिचुएशन में हाइपो होगी, किस में बेस होगी, या किस में परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड या फिर हाइट होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस थीटा के लिए बात करें तो ये, अगर थीटा आपका एंगल A दिया गया है बेटा, ठीक है, यहाँ पर फॉर एंगल A एज ए थीटा, अगर एंगल A आपका थीटा दिया गया है तो आपकी हाइपो, परपेंडिकुलर, हाइट और बेस ये रहने वाली है। सपोज दैट अगर मैं इसी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं छोटा करता हूँ और आपको समझाता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, सेम यही ट्रायंगल बनाऊंगा C, सेम ट्रायंगल आई हैव ड्रॉन। और इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेम भी मैंने यही दिए हैं A, B एंड C। दिस इज अ 90 डिग्री, गॉट इट। तो आप अच्छे से जानते हैं 90 की जो अपोजिट होती है वो हमेशा होती है कंसिडर्ड हाइपो, हाइपो टर्म्स कंसिडर्ड होती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम ये थीटा लेंगे, एक्चुअली उसमें एंगल A वर्टेक्स थीटा था, यहाँ पर अगर हम C वर्टेक्स को थीटा लेते हैं बेटा, C वर्टेक्स को थीटा लेते हैं, तो याद रखिए थीटा का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। तो यहाँ पर AB परपेंडिकुलर होगा और बाकी ये बची हुई जो साइड होगी, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ बेस, ये बेस होगी, गॉट इट। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर एंगल A थीटा है तो इसकी अपोजिट वर्ड साइड जो होगी वो BC होगी, जो कि परपेंडिकुलर होगी। और 90 के अपोजिट तो हाइपो है, इट नेवर चेंज, क्योंकि हाइपो थीटा पर डिपेंडेबल नहीं होती है, हाइपो राइट एंगल पर डिपेंडेबल होती है। तो दोनों ट्राइंगल में अगर राइट एंगल सेम है तो हाइपो डजंट इफेक्ट, हाइपो चेंज नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? तो स्टूडेंट्स, फॉर एंगल एंगल C है यहाँ पर, एंगल C एज ए थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, टर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइपो, यानी जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर बात करेंगे बेस। ये तीनों की जो नेम है या पर्टिकुलर है, हाइपो तो आपकी AC ही रहने वाली है बेटा,
लेट चेंज द कलर AC। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर आपके अब AB रहने वाला है, ठीक है, और BC क्या हो जाएगा आपका बेस। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर BC था, यहाँ पर बेस BC है, और बेस यहाँ पर AB था तो यहाँ परपेंडिकुलर AB है। यानी कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री चेंज नहीं होता है, थीटा चेंज हो जाते हैं, तो उन थीटा के बेसिस पर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स ये था आपके सामने एक शॉर्ट समरी अबाउट कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या क्या लिया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने मैंने ये इसलिए डिस्क्राइब किया है क्योंकि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम इसको इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लेकर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपो का स्क्वायर, जिसको हाइपोटेनस लिख लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऑर्डर, ये कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। बेटा इसका यूज़ क्या है? इसका बहुत अच्छा खासा यूज़ है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स आपको मैंने जो ये टर्म्स डिफाइन की गई है कि हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा किस थीटा के लिए, तो आपको वन ऑफ एनी ऑफ टू ऑफ देम, यानी कि इन तीनों में से कोई दो आपको देगा, और आपको सबसे पहले थर्ड वन आपको इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, द थर्ड वन टर्म्स या थर्ड वन साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी। या तो परपेंडिकुलर बेस आपको गिवन होगा, हाइपोटेनस बेस गिवन होगा, या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर गिवन होगा। तो बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस थ्योरम आपको रेस्ट ऑफ द साइड को निकालना होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके सामने। ठीक है, फटाफट देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देखिए टोटल मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। पहला बात करेंगे, पहला होता है साइन थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल कंसिडर किया गया है, साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी, कोई भी एंगल हो सकता है। बट जो हमारी वर्ल्ड वाइड मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में एंगल थीटा कंसिडर्ड किया जाता है, तो हम लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि थीटा ही होता है, यू कैन यूज। कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में आप एंगल ए भी देखेंगे, साइन ए, साइन बी, साइन सी, कहीं पर आप थीटा देखेंगे। तो थीटा को मेनली इंट्रोड्यूस कराया गया क्योंकि जो मैथमेटिशियंस है जिन्होंने ये इन्वेंट किया है, उन्होंने थीटा कंसिडर्ड किया था, और फिर वर्ल्ड वाइड ये इस्तेमाल होने लगा है। तो हम लोग भी वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम आपको थीटा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, दूसरा बात करेंगे बेटा, दूसरा होता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। नेक्स्ट होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट होता है बेटा आपके सामने कोटेजेंट थीटा, कोटेजेंट थीटा। लेट मी चेक, otherwise I have written the correct spelling. Cotangent theta, right? ये n is missing, no issue. हाँ, cotangent theta। और नेक्स्ट होता है फिफ्थ वन सेकेंड थीटा। ठीक है, क्या होता है? सेकेंड थीटा। एंड द लास्ट वन कोसेकेंट थीटा। ठीक है, 6 वन इज
कोसेकेंट थीटा। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो कुल मिलाकर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं जो कि फुल फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है बेटा, ध्यान से देखिए। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ जो कंसिडर की जाती है। SIN सिर्फ साइन थीटा लिखा जाता है, इसको कोस थीटा लिखा जाता है बेटा, इसको टेन थीटा लिखा जाता है, इसको कोट थीटा लिखा जाता है, इसको सेक थीटा लिखा जाता है और इसको कोसेक थीटा लिखा जाता है। बात आ रही है समझ में। सो स्टूडेंट्स, इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप सीखने वाले हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में क्या क्या अब विविधताएं पाई जाती है, क्या क्या डिफरेंस होता है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, ये जो पर्टिकुलरली 3 साइड्स का जिक्र किया था, बेस, हाइपोटेनस और आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन, इन तीनों के रेशियोज का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो फटाफट पहले बात कर लेते हैं आपके सामने साइन के बारे में। देखो, इसको कराने की बहुत सारी ट्रिक हैं, अलग अलग कराते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी थी, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर भोले, इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई हुई है। इसकी इंग्लिश में भी बहुत सारी ट्रिक है, हिंदी में भी है, तो जिसको जैसे समझना है समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसको समझते कैसे हैं, ये पहला वाला होता है साइन, गॉट इट। ये होता है बेटा कोस, ये होता है मेरे बच्चे टेन, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का रेशियो, ये कोस थीटा का, ये टेन थीटा का। टेन का अपोजिट होता है बेटा कोट, ये कोट थीटा का रेशियो होता है और ये सेक थीटा का होता है और ये कोसेक थीटा का होता है, गॉट इट। तो बेटा इन रेशियोज को समझते हैं, ठीक है, और फटाफट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा। यस बेटा, तो आपने देखा कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, ये होता है P/H के। P का मतलब क्या होता है बेटा, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और H का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, गॉट इट, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट कोस थीटा की, तो कोस आप देख रहे हैं B/H के इक्वल होता है, B/H। B का मतलब होता है बेटा बेस और H का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट में हाइपो भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे बेटा बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा आप देख रहे हैं किसका होता है, P/B का रेशियो होता है। तो देखिए P/B का, P का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, गॉट इट, अपॉन B का मतलब होता है बेटा बेस, गॉट इट। आगे बात करेंगे मेरे बच्चे, फटाफट देखते हैं कोट थीटा। कोट एक्चुअली क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है। देखिए टेन का रेशियो होता है P/B, तो कोट का रेशियो होता है B/P, यानी अपोजिट, नीचे से हम ऊपर को पढ़ते हैं। तो देखिए ये हो गया B/P। B का मतलब होता है मेरे बच्चे बेस और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे आपके सामने सेक थीटा की। तो सेक आप जानते हैं, सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का। कोस का आपने रेशियो लिखा B/H और ये होता है H/B, गॉट इट, H/B। H को बोला जाता है हाइपोटेनस, गॉट इट, और B को बोला जाता है बच्चे बेस, गॉट इट। कोसेक थीटा की बात करेंगे, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा कहलाता है आपके सामने H/P। H मतलब होता है बेटा H/B लिखते हैं पहले, H/B। H का मतलब होता है हाइपोटेनस, अपॉन B का मतलब होता है बेस। So students, these are the 6 trigonometrical ratios which you are going to study,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या बात किया था, अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया था। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नो और मैट्री से मिलकर होता है, जिसमें ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल और मैट्री का मतलब होता है मीजर। तो एक्चुअली यहाँ पर हम ट्राइंगल की मेजरमेंट के बारे में, ट्राइंगल की पर्टिकुलर टर्म्स की मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल लेकर बताया था कि इस ट्राइंगल में क्या क्या टर्म्स पाई जाती हैं। तो मैंने बताया ट्राइंगल के अंदर 3 तो साइड पाई जाती है और 3 ही एंगल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बेटा आपको समराइज कराया था कि यहाँ पर हम कौन से ट्राइंगल के बारे में सीखने वाले हैं। तो मैंने बताया यहाँ पर एक खास किस्म के ट्राइंगल का ही जिक्र होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको राइट ट्राइंगल भी कहा जाता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैंने आपको इस में बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई कि 90 डिग्री की जो अपोजिट होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं और मेंशन कर देता हूँ, जिससे आप कभी बोले ना, अपोजिट टू 90 डिग्री, अपोजिट टू 90 डिग्री क्या कहलाती है बेटा? हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर जो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट टू, ठीक है, यस, अपोजिट टू, यस, मैं यहां लिख देता हूं अपोजिट टू थीटा। थीटा का जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है और बेस रेस्ट ऑफ द साइड्स होती है। तो यहां पर भी देखिए ये 90 का अपोजिट है, अपोजिट टू 90, गॉट इट, ये अपोजिट टू 90 होता है। और ये जो परपेंडिकुलर है क्या है बेटा? अपोजिट टू थीटा होता है, ठीक है, अपोजिट टू थीटा होता है। और ये क्या हो गया बेटा? रेस्ट ऑफ द साइड्स बेस। मैंने आपको डिफरेंट थीटा लेकर आपको सिखाया है कि क्या उसमें बेस होगा, हाइपोटेनस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होगी। मैंने आपको इस पेज में ये सिखाया। आगे बेटा मैंने आपके सामने बात करी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम 2 साइड्स अगर आपको गिवन हो, थर्ड साइड निकालने का जिक्र हो रहा हो, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपने हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम सीखी थी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम सीख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने क्या सीखे थे बेटा? तो स्टूडेंट मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आपके सामने जिक्र किया था। मैंने आपसे ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 6 होते हैं, जिसमें साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। इनकी मैंने शॉर्ट फॉर्म भी आपसे बताई थी कि साइन की शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा होती है, कोसाइन की कोस थीटा, टेंजेंट की टेन थीटा, कोटेजेंट की कोट थीटा, सेकेंड की सेक थीटा और कोसेकेंड की कोसेक थीटा होती है। इनके पर्टिकुलर रेशियोज को मैंने कैसे सिखाया था? मैंने इनके पर्टिकुलर रेशियोज को निकालना सिखाया था इस तरीके से कि आप पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से टर्म्स को सीख सकते हैं। साइन थीटा का रेशियोज होता है P अपॉन H, आगे कोस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने जितना बेसिक था वो सीखा, लेकिन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या पढ़ने की नीड है वो हमने डिस्कस नहीं किया है। अब आपको समझ में आएगा कैसे। सपोज करो एक स्टूडेंट्स है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, एक बहुत ही अच्छा सा स्टूडेंट है, वो कुतुब मीनार घूमने गया, ठीक है, और कुतुब मीनार घूमने के बाद गया तो उसके सामने कुतुब मीनार खड़ी थी, ठीक है, यस, और लेट्स से ये कुतुब मीनार है, ठीक है, या फिर हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कुतुब मीनार है, लड़के को हमने नीचा कर दिया, ठीक है, ये राइट। और स्टूडेंट्स को इसकी मेजरमेंट नापनी है, इस कुतुब मीनार की मेजरमेंट को वो कैसे नापेगा? तो उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। अभी तक तो एक ही ऑप्शन है कि वो इसकी हाइट को नापेगा, लेकिन इतना बड़ा स्केल नापने के लिए उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। वो बच्चा क्या काम करेगा, फटाफट वो इस मेजरमेंट को नाप लेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, ठीक है, और एक क्या ले लेगा, एक
थीटा ले लेगा, यहाँ से यहाँ तक का थीटा मेजर कर लेगा। तो देखिए उसने यहाँ खड़े खड़े यानी कि विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द कुतुब मीनार ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। ये उसने कोई थीटा ले लिया रैंडमली और ये डिस्टेंस उसने ले ली, ठीक है, तो वो आसानी से इसकी हाइट को निकाल सकता है। स्टूडेंट्स दिस इज द यूज, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर उसने ये एक्चुअल डिस्टेंस ली है और ये एक्चुअल थीटा लिया है तो उसको ये एक्चुअल हाइट मिलेगी। क्या मिलेगी? एक्चुअल हाइट मिलेगी। स्टूडेंट अगर उसने ये अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस ली है, अप्रोक्सीमेटली थीटा लिया है, तो ये हाइट भी उसको अप्रोक्सीमेटली ली जाएगी। बात आई समझ में स्टूडेंट्स? तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। तो इस बच्चे ने विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट उसने आसानी से फाइंड आउट कर लिया इसकी हाइट को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को यूज करने के लिए आपको एटलीस्ट, ध्यान से सुनिए, आपको एटलीस्ट एक तो थीटा चाहिए, वन एंगल, इसको मेजर करने के लिए वन एंगल चाहिए और वन मेजरमेंट चाहिए ऑफ साइड, मेजरमेंट ऑफ साइड, ठीक है। एक तो एंगल चाहिए और एक मेजरमेंट चाहिए, सिर्फ साइड की कोई सी भी एक मेजरमेंट आप उसको लाके दे दो तो वो रेस्ट ऑफ द साइड्स भी निकाल लेगा और रेस्ट ऑफ द एंगल भी निकाल लेगा। अब तक बच्चे ने क्या सीखा था? अब तक बच्चे ने पाइथागोरस थ्योरम सीखी थी जिसमें उसको एटलीस्ट टू साइड्स की जरूरत होती थी टू फाइंड आउट द थर्ड साइड, लेकिन इस कंडीशन में उसको सिर्फ एक एंगल की जरूरत होगी और सिर्फ एक ही साइड की जरूरत होगी। वो रेस्ट ऑफ द टर्म्स को निकाल देगा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स को निकाल देगा, यानी कि रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स, रेस्ट ऑफ द टू साइड्स वो आपको निकाल कर दे देगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसका यूज क्या है प्रोफेशनल लाइफ में। बेटा प्रोफेशनल लाइफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है दो तरीकों में मेनली। एक तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफेंस में, बहुत बड़े स्केल पर डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? बेटा आपको पता है कि ये क्या है, गोला बारूद वाला बम है, ठीक है, और ये क्या है, बम है बहुत अच्छा खासा, ठीक है, और ये पता नहीं उल्टा सीधा मैंने बना दिया, ठीक है। और आपने देखा है कि बम को यहाँ पर पाकिस्तान है, सपोज करो इस पाकिस्तान के बंकर को उड़ाना है, तो वो क्या काम करते हैं? वो क्या काम करते हैं, इसको मैं तिरछा कर लेता हूँ, ठीक है, यस, वो क्या काम करेंगे? वो यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर वो थीटा का इस्तेमाल करेंगे इसको यहाँ पर गिराने के लिए। बात आई समझ में? बात आ गई समझ में? यहाँ से गोला निकलेगा और वो कितने एंगल पर गिराए, कितने एंगल पर गिराए कि ये बंकर गिर जाए, तो उनके पास ये मेजरमेंट तो होती है। रेडार की मदद से वो हेल्प कर लेते हैं, रेडार की मदद से ही वो ये जो आपके सामने दिया गया है कहना चाहिए सैटेलाइट की मदद से ये लोकेशन भी वो ट्रैक कर लेते हैं। तो वो आसानी से इस डिस्टेंस को मेजर करके और उनको ये आइडिया लग जाता है कि इस तोप को इतने डिग्री पर रखा जाएगा तो इतने डिग्री जो है गोला दूर फेंकेगा और वो जाकर दुश्मन के बंकर को गिरा देगा, ठीक है। और पहला इस्तेमाल तो मैंने आपको बताया डिफेंस में, और दूसरा इस्तेमाल जो इसका होता है वो करते हैं कहना चाहिए बिल्डिंग बनाने वाले आर्किटेक्चर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर पुल वगैरह बनाना होता है पहाड़ों पे कहीं पर, तो वो यहीं से खड़े खड़े एंगल नाप लेते हैं कितने डिग्री है, इसकी हाइट कितनी होगी, पुल कितना हाइट रखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन कर लिया है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक कंक्लूजन पर बात करेंगे जो कि हमें कंक्लूजन मिला है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से, तो उन कंक्लूजन के बारे में जिक्र करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आफ्टर सीइंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें कुछ कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है? मैंने अभी आपको ये बात बताई भी है कंक्लूजन की। आपने देखा कि यस, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, वी विल गेट अ परफेक्ट स्पेस। यस, नाउ इट्स ओके। सी, हम यहाँ पर एक कंक्लूजन पर आते हैं। आपने एक बात ये नोटिस करी बेटा कि ये देखिएगा साइन थीटा, साइन थीटा
का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है P अपॉन H होता है, और कोसेक थीटा का H अपॉन P अपॉन H अपॉन B। ये मैंने कैसे लिख दिया? इट्स H अपॉन P बेटा, मैंने कुछ गलती से लिख दिया है। यस, कोट थीटा का B अपॉन H, ये H अपॉन P होगा बेटा, ये गलती से मेरे से लिखा गया। यस, P का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या डिफरेंस होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, पहली टर्म्स हमें ये पता चलती है। और इसी तरीके से कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये कॉन्क्लूजन हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा कॉन्क्लूजन आप देख रहे हैं ये कोस थीटा और सेक थीटा का। तो देखिए कोस थीटा P अपॉन H होता है और सेक थीटा होता है H अपॉन B होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपके सामने कोस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन किसके, सेक थीटा के, और या फिर कहना चाहिए कि सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब आगे ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से टेन थीटा, देखिए टेन थीटा होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा क्या होता है B अपॉन P, ठीक है। तो इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल्स टू किसके होता है 1 अपॉन कोट थीटा के, और 1 अपॉन कोट थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो ये कॉन्क्लूजन हमने यहाँ पर निकाले हैं।